سانحہ ساہیوال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کار ڈرائیور ذیشان کے جاں بحق ہونے کے معاملے پر ڈرائیور ذیشان کے اہل خانہ کا انصاف ملنے تک احتجاج کا اعلان سامنے آیا۔ انصاف ملنے تک ذیشان کی تدفین نہیں کی جائے گی، اہل خانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ذیشان کے اہل خانہ نے میت فیروز پور روڈ پر رکھ کر دھرنا دے دیا ہے۔ ذیشان کو دہشت گرد قرار دینے پر وزیر قانون راجہ بشارت استعفیٰ دیں، اہل خانہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سانحہ ساہیوال میں کار ڈرائیور ذیشان کے جاں بحق ہونے کے معاملے پر ڈرائیور ذیشان کے اہل خانہ نے انصاف ملنے تک احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ انصاف ملنے تک ذیشان کی تدفین نہیں کی جائے گی، اہل خانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ذیشان کے اہل خانہ نے میت فیروز پور روڈ پر رکھ کر دھرنا دیا ہوا ہے اور ذیشان کو دہشت گرد قرار دینے پر وزیر قانون بشارت راجہ استعفیٰ دے، اہل خانہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں اہل خانہ اور اہل علاقہ اس وقت موجود ہیں فیروز پور روڈ پر میت کو لیے ہوئے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ نعرے بازی اس وقت کی جا رہی ہے حکومت کے خلاف۔ ڈرائیور ذیشان کے اہل خانہ کا انصاف ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ اہل خانہ غم سے شدید نڈھال نظر آ رہے ہیں اور فضا سوگوار ہے۔ انصاف ملنے تک ذیشان کی تدفین نہیں کی جائے گی، اہل خانہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے۔ ذیشان کے اہل خانہ نے میت فیروز پور روڈ پر رکھ کر اس وقت دھرنا دیا ہوا ہے اور ذیشان کو دہشت گرد قرار دینے پر وزیر قانون بشارت راجہ استعفیٰ دیں، اہل خانہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فیروز پور روڈ کے یہ مناظر ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ٹریفک کو فیروز پور روڈ کے لیے مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے اور سانحہ ساہیوال میں کار ڈرائیور ذیشان کے جاں بحق ہونے کے بعد ڈرائیور ذیشان کے اہل خانہ کا انصاف ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اس وقت فیروز پور روڈ پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرائیور ذیشان کے اہل خانہ کا انصاف ملنے تک احتجاج کا اعلان سامنے آیا ہے۔ انصاف ملنے تک ذیشان کی تدفین نہیں کی جائے گی، اہل خانہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز پور روڈ سے، اور ساتھ ہی ساتھ حسن خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے اسپتال کے باہر سے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے عابد چودھری کا جو کہ فیروز پور روڈ کے باہر موجود ہے، ان سے جانیں گے تازہ ترین کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے گا عابد چودھری، کیا کوئی مذاکرات کے لیے ابھی تک پہنچا ہے وہاں پر؟ بالکل، اس وقت فیروز پور روڈ پر موجود ہوں۔ سانحہ ساہیوال میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے ذیشان کے اہل خانہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت یہاں پر نعرے بازی کر رہی ہے۔ مظاہرین جو ہیں پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں پر لاش کو رکھا گیا، جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون جن کی جانب سے بیان دیا گیا اور اس ذیشان کو دہشت گرد قرار دیا گیا اس سے استعفیٰ نہیں لیا جاتا، تب تک وہ اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین جو ہیں وہ اس احتجاجی دھرنے میں شامل ہیں۔ البتہ اس وقت ذیشان کے جو اہل خانہ اور ان کے ورثہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کا مطالبات جانیں گے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا مطالبات آپ کے کیا ہیں اور احتجاجی دھرنا کب تک جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احتجاجی دھرنا یہ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ پنجاب کے جو وزیر قانون ہے راجہ بشارت، انہوں نے جو بیان دیا ہے 30 سال سے یہاں پہ یہ رہ رہے ہیں اور 30 سال سے ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے جو ہمارے کبھی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا، کمپیوٹر کا یہ کام کرتے ہیں۔ ایک عام اور پرامن شہری کو اس ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے وزیر قانون اسے دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں اور پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اگر دہشت گرد ہیں تو پھر یہ ہمارے چہرے یہاں پہ سامنے ہیں، یہ پورا علاقہ یہاں پہ سامنے ہے۔ کیا یہ سارا علاقہ دہشت گرد ہے؟ انہوں نے یہاں پہ جو ہے یہ ایک شریف انسانوں کو قتل کر کے، قتل عام کر کے، اور یہ جو پولیس ہے، جو سی ٹی ڈی ہے، اس نے کس قانون کے تحت ان کے اوپر فائرنگ چلائی اور ان نہتے انسانوں کا ظلم، ان کے اوپر ظلم ڈھائے، ظلم کے پہاڑ گرائے، اور پھر حکمران ابھی بھی شیش محلات میں بیٹھ کے سیاسی بیانات دے رہے ہیں۔ اور کبھی آپ کے مطالبات کیا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں مختلف جو ہے قاصد کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے لیول کے لوگ ہیں، جو ابھی کوئی ایس پی صاحب بھیج رہے ہیں، کوئی بھیج رہا ہے، اور وہ یہاں پہ آ کے یرغمال بنا رہے ہیں اور ہیپنیٹائز کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ہٹیں۔ ہم جی ٹھیک ہے، لواحقین سراپا احتجاج ہیں اور تدفین بھی روکی گئی ہے انصاف ملنے تک۔ اور عابد چودھری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رخ کریں گے ہم جنرل ہاسپٹل کا جہاں پر موجود ہیں حسن خالد۔ حسن خالد، بتائیے گا کہ بچوں کے والدین کی تدفین کی جا چکی ہے، بچوں کی کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال ہے ہسپتال میں، ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ کے مقتولین کی تدفین تو کر دی گئی ہے، لیکن جو مقتولین کے بچے ہیں وہ ابھی بھی جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ 3 بچوں کو آج صبح 5 بجے کے قریب جنرل ہاسپٹل لایا گیا تھا، جن میں 5 سالہ خادیہ، 7 سالہ منیبہ اور 10 سالہ عمیر شامل تھے۔
जिनमें से जो हादिया थी उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था, जबकि दीगर उसके जो 2 बहन भाई थे जिनमें 10 साला उमैर और 7 साला मुनीबा थे, उनको डॉक्टर्स ने अभी पिम्स में यानी कि न्यूरो सर्जन्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है, जहां पर डॉक्टर खालिद फ़ारूक की सरबराही में 6 रुकनी डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, जिनमें मेडिसिन के डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शामिल हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल भी डॉक्टर जो प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल हैं उन्होंने दोबारा से विज़िट किया था, और उनका भी यही कहना था कि जो कि बच्चे हैं वो अभी तक एक शौक में हैं, उनको नफसियाती जो है उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है। अलबत्ता वो ज़ाहिरी तौर पर तो अब खतरे से बाहर हैं। उनको जो 10 साला उमैर था उसके टांग पर गोली छूकर गुजरी थी, उसका ऑपरेट कर दिया गया है। बिल्कुल ज़हनी तौर पर अभी वो अजियत का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, जनरल अस्पताल के बाहर से आप हमें आगाह कर रहे थे। साथ ही साथ आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे फिरोजपुर रोड से, वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आबिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है तीनों बच्चों को, और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है। 6 रुकनी कमेटी है स्पेशल डॉक्टर्स की जो कि तश्कील दी गई है बच्चों की देखभाल के लिए, और साइकेट्रिस्ट भी इसी कमेटी में मौजूद हैं। और दूसरी जानिब फिरोजपुर रोड की अगर बात की जाए तो वहां पर लवाहिकीन हैं जो कि इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं, और यही मुतालिबा किया जा रहा है कि जब तक इंसाफ उनको फराहम नहीं किया जाएगा इसी तरह वो वहां पर मैयत को लिए धरना दिए बैठेंगे। सानेहा साहिवाल पर लाहौर अफसुर्दा है, हर आंख अशकबार है। मकतूलीन की रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। फिरोजपुर रोड पर एहतजाज जारी है, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई है। मेट्रो बस सर्विस भी मअतल है। कई घंटों बाद लवाहिकीन की अपील पर एहतजाज भी खत्म कर दिया गया, जबकि किसी हुकूमती शख्सियत ने राब्ता किया है और न ही जख्मों पर मरहम रखा है। साहिवाल में सीटीडी की फायरिंग से जाबहक होने वाले कोट लखपत के रिहायशी खानदान के लवाहिकीन और अहल इलाका का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड और चुंगी अमर सद्दू मेट्रो स्टेशन को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जबकि पुलिस और सीटीडी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मकतूल के भाई इमरान का कहना था कि उनके बेगुनाह खानदान को मारने के बाद दहशतगर्द करार दिया जाता रहा, जबकि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने उनसे राबिता करके दाद रसी तक नहीं की। नामालूम वो कैसे हैं, क्या उनको पता नहीं है इदारे को कि हमारे इस वक्त कौन से अफराद जो ड्यूटी पे हैं, जो नई ड्यूटी पे, चलो वो भी नहीं पता। जो तस्वीरें आ रही हैं, फोटो आ रही हैं, वीडियो आ रही है, उससे भी नहीं, एक को पकड़े सब पता चल जाएगा कितने आदमी हैं कितने नहीं हैं। मुजाहिरीन ने मकतूलीन के वरसा को इंसाफ दिलाने और जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। सानेहा साहिवाल पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। वाक़े को जुल्म और बर्बरियत करार दे दिया गया है। बिल्कुल, सानिया साहिवाल पर गवर्नर पंजाब की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया है और वाक़े को जुल्म और बर्बरियत करार दिया है। उनका इस वीडियो पैगाम में क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल में जो बेचारे नहत्ते फैमिली के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है और बच्चों के सामने उनकी वालदा और वालिद को जिस तरीके से गोलियां लगी हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम सदमे में है, अफसुर्दा है, और इससे पूरे पाकिस्तान के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है। मैं बहैसियत गवर्नर पंजाब पाकिस्तान के भाइयों को, बहनों को, ओवरसीज रहने वाले पाकिस्तानियों को अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से और हमारे वजीर आजम सानेहा साहिवाल पर गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने वीडियो पैगाम में क्या कहा वो आपने सुना। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको अपडेट करेंगे। घरेलू मुलाजमा की नाले से लाश बरामद होने के मामले के हवाले से बुरसा के एहतजाज के बायस मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है और मुजाहिरीन की जानिब से भी पुलिस पर पथराव किया गया है। पीटीआई एमपीए नदीम अब्बास बारा भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि घरेलू मुलाजमा की नाले से लाश बरामद होने का मामला है और बुरसा के एहतजाज के बायस मोटरवे काफी देर से मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है अब, और पुलिस ने लाश तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी है। मुजाहिरीन की जानिब से भी पुलिस पर पथराव किया गया और पीटीआई के एमपीए नदीम अब्बास बारा की बात की जाए तो वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। मुश्तइल मुजाहिरीन हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं।
मोटरवे आम आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। घरेलू मुलाजमा की नाले से लाश बरामद होने के मामले के बाद वर्षा के एहतजाज के बायस मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है और पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, अहले खाना ने लाश को मोटरवे पर रखकर एहतजाज किया है, जिसके बाद ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई है और आपको भी दिखाते चले कि ट्रैफिक जो है वो बंद है मोटरवे पर। और इसी हवाले से पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दी है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से भी पुलिस पर पथराव किया गया है और PTI के MPA नदीम अब्बास बारा भी इस मौका पर मौजूद थे। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताइएगा मोटरवे पर सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? क्या मोटरवे को क्लियर करवा लिया गया है और सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मोटरवे दोनों साइड से क्लियर करवा लिया गया है और अब ट्रैफिक की जो रवाना वो यहाँ पर चल चुकी है और दोनों अतराफ से ट्रैफिक को रवाना कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे, मुजाहिरीन की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा था कि हमारे जो मुल्जिमान हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। जब तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। पुलिस के बारहा यहाँ पर मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई का अमल शुरू किया, पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में जब लिया तो मुजाहिरीन यहाँ पर मुंतशिर हो गए और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किए, जिसकी वजह से पुलिस के नौजवान भी ज़ख्मी हुए हैं। और काफ़ी यहाँ पर पुलिस के जो नौजवान हैं, जो यहाँ पर SHO DSPs हैं, वो भी यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, उनके सरों में पत्थर लगे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस इलाके के, क्योंकि ये शादेवाल का गांव है, इस इलाके जो MPA इलेक्टेड हुए थे नदीम अब्बास बारा, जो कि PTI के रहनुमा हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद उन्होंने मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उन्हें करवा कर इस जो एहतजाज था इसे ख़त्म किया है। और लाश को पुलिस के आगे, ये लाश जो पुलिस की अभी तहवील में है, वो पुलिस की तहवील में से ये कहा गया है कि लाश को वर्षा के हवाले किया जाए। और अभी जो कंडीशन है वो ये है कि वर्षा के जो लवाहिकीन थे उनकी जानिब से मोटरवे को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। और पुलिस ने जब ऑपरेशन किया उसके बाद यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई। यहाँ पर पथराव भी हुआ, लाठी चार्ज भी हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए और काफ़ी यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो MPA नदीम अब्बास बारा हैं वो पहुँचे हैं तो उसके बाद जो हालात हैं वो काफ़ी कंट्रोल हो चुके हैं और मोटरवे को दोनों तरफ से खोल दिया गया है। बाबू साहबू से ठोकर न्याज बेग की तरफ और ठोकर न्याज बेग से बाबू साहबू की तरफ जो ट्रैफिक की रवानगी है वो यकीनी बना दी है कि 2-3 दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, इशरा पीर गाजी रोड के मकीनों का सुई गैस लोड शेडिंग और मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुआ। महकमा नॉर्दर्न गैस के खिलाफ शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। मकीनों का कहना था कि जब से मौसम सरमा का आगाज हुआ है तब से ही इलाका में सुई गैस नायाब हो गई है। महकमा गैस को कई बार शिकायत की हैं और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। इनों का कहना था कि जब से मौसम सरमा का आगाज हुआ है तब से ही इलाके में सुई गैस नायाब हो गई है। महकमे गैस को कई बार शिकायत की और एहतजाजी मुजाहरे भी किए मगर कोई टस से मस नहीं होता। मुजाहिरीन ने बताया कि बाजार से खाना मंगवाना पड़ता है। अहले इलाका ने एहतजाजन गले में रोटियों के हार और गैस सिलेंडर सड़क पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी की। शहरियों ने कहा कि जब से नई हुकूमत आई है महंगाई में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वलेंशिया टाउन सोसाइटी इंतखाबात के सिलसिले में मुहिम जारी है। आज़ाद वलेंशिया ग्रुप की जानिब से मेंबर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। चेयरमैन आज़ाद वलेंशिया ग्रुप इमरान गुराया ने सोसाइटी की फलाह बहबूद और तरक्की का मंशूर पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार घुमन। वलेंशिया टाउन सोसाइटी के इंतखाबात मार्च में होने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज़ाद वलेंशिया ग्रुप की जानिब से मेंबर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। चेयरमैन आज़ाद वलेंशिया ग्रुप इमरान अली गुराया, सदर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद लुकमान, सेक्रेटरी अमीर हमजा कुरैशी, चौधरी रफीक गुज्जर समेत मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इमरान गुराया ने कहा कि बिजली, पानी, तालीम, मेडिकल, पार्क, सिक्योरिटी, सड़कों की तामीर हमारा मंशूर है। वलेंशिया के रिहायशियों को हम तमाम सहूलियात देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी हाउसिंग स्कीम है, मॉडल टाउन के बाद सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम है। इसमें तमाम इन्फेक्शन जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तमाम मॉडल टाउन सोसाइटी के बराबर की होनी चाहिए। आज़ाद वलेंशिया ग्रुप के बाकी उम्मीदवारों ने कहा कि हम वलेंशिया के रहायशियों के लिए बेहतर सहूलियात लेकर आएंगे। हम इंशाअल्लाह वो करेंगे जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को करना चाहिए। हमने प्लानिंग की है कि सबसे पहले यहाँ पर मसला है पानी और बिजली का। पानी की हमने कमी दूर करनी है और बचत के दूसरे तरीके इख्तियार करने हैं।
हमारी यही सोच है कि हम जो है कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें सोसाइटी की। हमारे पास काफ़ी एसेट्स हैं, जो 55 कनाल का शुरू में एक प्लाट पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं यहाँ मार्केट बनाएं, इसको लीज आउट करें। उम्मीदवारों का कहना था कि वेलेंशिया टाउन को शहर के दीगर टाउन्स की तरह स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ वकार घुमन, सिटी 42। पाकिस्तान में तैनात थाईलैंड के सफीर मिस्टर यूनॉप की शाही कला और बादशाही मस्जिद और लाहौर म्यूजियम का दौरा। इस मौके पर सफीर के हमरा थाईलैंड एम्बेसी के अफसरान और फैमिलीज भी मौजूद थीं। तफसीलात बसाम सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में तैनात थाईलैंड के सफीर मिस्टर पारिन पॉप की लाहौर शहर आमद, शहर में मौजूद सकाफती वर्षे को देखा और बेहद सराहा। इस मौके पर सफीर के हमरा थाईलैंड एम्बेसी के अफसरान और उनकी फैमिलीज भी मौजूद थीं। डेलीगेशन ने शाही कले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, बादशाह बादशाही मस्जिद और लाहौर अजायब घर भी गए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए थाई सफीर का कहना था कि पहली मर्तबा लाहौर आए हैं, आकर बेहद खुशी हुई। इन मकामात को यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। लाहौर यकीनन सकाफती दारुल हुकूमत है। This is my very first time to visit Lahore, but unfortunately this is my short visit to Lahore. This trip of mine is for providing consular services to the Thai community, and we did it yesterday. थाई सफीर ने मजीद बताया कि लाहौर आने का मकसद यहाँ पर मौजूद थाई कम्युनिटी को सफारती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना था। कैमरामैन एडी मलिक के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। खेलों से जुड़ी खबर के पंजाब यूनिवर्सिटी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को 13 रन से शिकस्त देकर इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैंपियनशिप के जोन डी का फाइनल जीत लिया है। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस क्रिकेट ग्राउंड पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुकर्ररा 35 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए। मुदस्सिर अलवी 110 और शमरून सिराज 50 रन बनाकर नुमाया रहे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जरियाब खान और अबू बकर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम 35 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बना सकी। सलमान फैज सबसे ज्यादा 51 रन बनाकर नुमाया रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी के इमाद भट्ट और साजिद खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नौजवान खिलाड़ियों ने यूनिवर्सिटी क्रिकेट को अपनी गलतियों पर काबू पाने और खुद को आने वाली क्रिकेट के लिए तैयार करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। देखें, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया यूनिवर्सिटी वालों ने कि यहाँ से प्लेयर बन के आगे जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे कोचेज़, हमें अच्छी इन्वायरमेंट, हमें सब कुछ माहौल, सब कुछ हमारे लिए प्लेयर्स के लिए अच्छा। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हर प्लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करते हैं ये हमें आगे जो हमने ग्रेड 2 और सारी क्रिकेट खेलनी होती है, फर्स्ट क्लास और बाकी जो भी क्रिकेट है, तो उसके लिए हमारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। जोन डी के फाइनल में क्वालिफाई करने पर पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीमों ने इस्लामाबाद में 5 फरवरी से शेड्यूल इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। बताएं कि फतेहगढ़ के इलाके में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। चोर चेयरमैन यूनियन काउंसिल 140 अली इमरान के दफ्तर के बाहर से मोटरसाइकिल ले उड़ा। सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। फतेहगढ़ के इलाके से दिन दिहाड़े चोर चेयरमैन अली इमरान के ऑफिस आए हुए शहरी की मोटरसाइकिल गेट के सामने से ले उड़ा। शहरी का कहना था कि ऑफिस के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की, कुछ देर बाद जब वापस आया तो मोटरसाइकिल मौजूद नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि चोर बाआसानी आता है, मोटरसाइकिल ले जाता है। इस मौके पर चेयरमैन अली इमरान ने कहा कि शहर के अहम इलाकों में वारदातों का सिलसिला न रुक सका। पुलिस क्राइम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन के इलाके में बूंदाबांदी और सबनाबाद और इशरा में बारिश भी हुई है। महकमा मौसमियात ने आज रात से मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है और बारिश का सिलसिला 1 हफ्ते जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर के मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं, जो कि खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। इकबाल टाउन के इलाके में बूंदाबांदी है, समनाबाद और इचरा में भी बारिश देखने में आ रही है। महकमा मौसमियात ने आज रात से मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है और बारिश का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। इकबाल टाउन और समनाबाद और इचरा में बारिश का भी हुई है और महकमा मौसमियात ने 1 हफ्ता बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान भी जारी किया है।
पाबंदी के बावजूद समनाबाद जोन के कंट्रोल्ड एरिया कलियार रोड पर खुले पेट्रोल की फरोख्त जारी है, लेकिन समनाबाद जोन इंतजामिया और जिले इंतजामिया बदस्तूर किसी हादसे की मुंतजिर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कलियार रोड पर पाबंदी के बावजूद खुले पेट्रोल की फरोख्त का सिलसिला जारी है। पीएसओ की फिलिंग मशीन के जरिए दुकान में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। समनाबाद जोन के कंट्रोल्ड एरिया में पेट्रोल की खुलेआम फरोख्त पर जोन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। दुकानों में मुख्तलिफ कंपनियों की स्क्रैप शुदा मशीनों के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की फरोख्त जारी है। खुले पेट्रोल की फरोख्त से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ज़िला इंतजामिया का रावंड में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी, 20 दुकानें सील जबकि 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से रावंड में तजावुजात के खिलाफ मेन बाजार में ऑपरेशन किया गया। बहरहाल नोटिस के बावजूद बाज न आने और बार बार तजावुजात कायम करने पर 20 दुकानों को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रावंड की सरबराही में किए जाने वाले ऑपरेशन में 2 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। 10 दुकानदारों को वार्निंग जारी की गई। मॉडल बाजार के मैनेजर को नाकिस सेवरेज सिस्टम पर वार्निंग दी गई। डीएसपी ट्रैफिक को गैर कानूनी वैगन स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई। डीसी लाहौर साले सईद ने ऑपरेशन को सराहते हुए शहर में तजावुजात और कब्जा माफी के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत जारी की। उधर साहिवाल सानहे पर पंजाब बार काउंसिल ने कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पंजाब बार काउंसिल ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा भी किया है। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल ने साहिवाल में सीटीडी के हाथों 4 अफराद के कत्ल के वाक़े के खिलाफ कल सुबह भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। रुकन सूबाई असम्बली हल्का पीपी 167 नज़ीर चौहान की जानिब से हल्के के मुस्तहिक ख़वातीन में गर्म शॉलें तकसीम की गई। मिसेज नज़ीर चौहान भी इस मौके पर मौजूद थी। कहते हैं कि सियासत में खिदमत खल्क का कायल हूँ। मरकजी दफ्तर तहरीक इंसाफ पीपी 167 टाउनशिप में मुनक्किदा तकरीब में 100 से ज़्यादा ख़वातीन में एमपीए नज़ीर चौहान की जानिब से गर्म चादरें तकसीम की गईं। नज़ीर चौहान ने ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि हल्के के मुस्तहिक लोगों के लिए तरजीही बुनियादों पर वसाइल का इंतजाम करेंगे। उनका कहना था कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए अपनी मदद आपके तहत भी कोशिशें कर रहा हूँ। अब आपको बताएं, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्कियात और इस्लाहात मखदूम खुसरो बख्तियार ने जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अदम पेशरफ की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर डाल दी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। गुफ्तगू करते हुए मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि उनकी हुकूमत ने सी पैक को वसअत देकर इससे फौरी फायदा उठाने के लिए चीन के साथ मुआहिदा किया है। मुल्क में बहुत जल्द सनती, मुआशी और समाजी तरक्की शुरू हो जाएगी। सी पैक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का कयाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो अहम इंडस्ट्रीज़ जो हमने डिफ़ाइन की हुई हैं उनके साथ उधर से हम लोगों को उनके वहाँ नुमाइंदगी मिले। मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा जरूर बनेगा। नून लीग ने जनूबी पंजाब सूबे के साथ बहावलपुर सूबे की बहाली की बात करके मामला खराब करने की कोशिश की है। जब भी ये जनूबी पंजाब की बात हुई है, नून लीग ने 2 सूबों की बात शुरू कर देता है, जनूबी पंजाब और बहावलपुर। ये वहाँ की आवाम को तफरीक में डालने के चाहते हैं। साहिवाल सानहे के हवाले से मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वाक़े पर इंतहाई रंजीदा हैं। सानहे की तहकीकात के लिए JIT बना दी गई है। मुजरिमान को करारवाह की सजा दी जाएगी। कैमरामैन अली हसन के हमराज सईद अहमद सईद, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि जानवरों बिलखुसूस कुत्तों के शौकीन शहरियों के लिए डॉग शो का एहतमाम किया गया है, जिसमें जर्मन शेफर्ड समेत दीगर नस्ल के कुत्तों ने अपने मालिकों के साथ इंसान दोस्ती का भरपूर मुजाहरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। रंग ढंग नस्ल चाल चलन सब खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। रैंप पर मालिक के इशारों पर करतब दिखाते इन कुत्तों ने गैर मुल्की जजेस को भी कर दिया हैरान। लाहौर में रॉयल कैनिन डॉग शो में मुख्तलिफ नस्ल के 100 से ज्यादा कुत्तों ने हिस्सा लिया, जिनकी तरबियत और खुराक पर खासी तवज्जो दी गई। मैं खुद ट्रेनिंग करता हूँ इनकी, और जब ट्रेनिंग में इनको बताना होता है कि ये गलत है, ये सही है, इस तरह से चलना है, इस तरह से नहीं चलना, उसके दौरान इनको बताना पड़ता है। ये बेसिकल जो हैंडलर होता है अंदर, वो हैंडलर इसको हैंडल करता है कि इस वक्त वॉक करनी है, टॉट करनी है, क्या करना है। कुत्ता वफादार होता है ये तो सुना था, मगर कुत्ते पालने के शौकीन अफराद का कहना है कि कुत्ता तन्हाई का बेहतरीन साथी होने के साथ साथ जहनी दबाव से भी निकालता है। अगर आप इन्हें सिखाएं जो भी, तो ये सीख जाते हैं। ये सीख जाते हैं, दुनिया में बड़े कामयाब हैं। इवन ब्लाइंड डॉग्स, ब्लाइंड पीपल के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं बतौर गाइड डॉग्स, और बड़े इंटेलिजेंट ब्रीड है। जो सिखाएं सीख जाएंगे। ये इससे अच्छा दोस्त बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता, जो उनकी हर बात मानता है, उनके साथ स्पेशली खेलता है जब जिस तरह वो चाहते हैं।
जहां बड़े कुत्तों ने अपनी फुर्तियों से दहशत जमाई, वहीं कुछ छोटे कुत्ते अपने मालकान की गोद में सवार होकर खूब नाज नखरे दिखाते रहे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ सादिया खान, लाहौर। कभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे फिरोजपुर रोड पर, जहां पर ज़ीशान के अहले खाना मीडिया टॉक कर रहे हैं, जो कि इनके ऑफिसर हैं। हम इनसे भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भी कमिटमेंट एहतशाम के साथ यहाँ पर की गई है उसको पूरा करें। और मैं राजा बशारत साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप किस तरह JIT की रिपोर्ट से पहले ज़ीशान को आप दहशतगर्द करार दे रहे हो, थोड़े होश के नाखुन हो, बजाय कि इन पे मरहम रखो, इनके सर पर शफकत का हाथ रखो, इनको तसल्ली दो। JIT की रिपोर्ट के बाद अगर वो दहशतगर्द है, खुदा ना खास्ता, तो हम कभी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अहले इलाका, अहले मोहल्ला ज़ीशान के साथ हैं। इंशाल्लाह उसकी तदफीन भी करेंगे और इंशाल्लाह हम इंसाफ की दुआ करेंगे। नौकरी का प्रेशर तो नहीं है यार? बताएं जरा, खुल के बताएं आप। नहीं, किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, मैंने इन पे बस भरोसा किया है। क्या वज़ीर कानून का बयान क्या SSP या DSP साहब या SP साहब बदल सकते हैं? बताएं जरा इसमें। परेशान नहीं होना, बताएं ना, आप बताएं, आपके लिए बेहतर होगा। मेरे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। किसी किस्म की लालच दी हो, किसी किस्म की लालच दी हो, किसी किस्म की लालच दी हो आपको कि नौकरी के लिए आप नौकरी जा सकते हैं। शाम भाई आराम से रिलैक्स हो के, ये आपके साथ हैं भाई, कोई टेंशन नहीं। ज़ीशान के अहले खाना फिरोजपुर रोड पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका क्या कहना था वो आपने सुना। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी साइकिलिस्ट ज़ीशान अली और वहीद अहमद ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। कौमी साइकिलिस्ट के साथ हादसा शेखुपुरा रोड पर पेश आया है। दोनों खिलाड़ी ट्रक की जद में आकर शदीद जख्मी हुए हैं। साइकिलिस्ट को शदीद जख्मी हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कौमी साइकिलिस्ट ज़ीशान अली और वहीद अहमद ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। कौमी साइकिलिस्ट के साथ हादसा शेखुपुरा रोड पर पेश आया है। दोनों खिलाड़ी ट्रक की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए हैं और साइकिलिस्ट को शदीद जख्मी हालत में जनरल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं गवर्नर हाउस में गुज़िश्ता हफ्तों के मुकाबले में शहरियों की तादाद में कमी वाक़ हुई है। हुकूमत से गवर्नर हाउस की मरकजी इमारत खोलने का भी मुतालबा किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गवर्नर हाउस मामूल के मुताबिक शहरियों के लिए खोला गया, जहां नन्हे बच्चे सेल्फियां लेते जबकि फैमिलीज के साथ आए अफराद चहलकदमी और गोल्फ गाड़ी की सैर करते नजर आए। गुज़श्ता हफ्तों के मुकाबले में शहरियों की तादाद में वाज़ेह कमी देखने में आई, जिससे शहरियों की गवर्नर हाउस में दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि गवर्नर हाउस की इमारत को भी खोला जाए ताकि यहाँ आकर अंग्रेज दौर के फन तामीर को भी देखा जा सके। असल मकसद जो हमारा यहाँ पर आने का, जो हमने बिल्डिंग्स देखनी थी वो हमें नहीं देख पाए हम। इसके लिए हम अपने गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि कुछ ऐसे मामला करें कि हम उन बिल्डिंग्स को अंदर से जाकर अच्छे तरीके से देख सकेंगे। शहरियों ने शिकवा किया कि गवर्नर हाउस में खाने पीने की अशिया लाने पर पाबंदी है, जबकि पीने के पानी और वॉशरूम का भी कोई इंतजाम नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।